এহাতে যদি ইণ্ডিগোৰ মৈমতালিৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ, আনহাতে বায়ু প্ৰদূষণৰ কবলত প্ৰায় শ্বাসৰুদ্ধ অৱস্থা দিল্লীৰ জনতাৰ। আকৌ ইফালে আকাশৰ পৰা হৰাদি তললৈ নামিছে ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ মূল্য। কিন্তু দেশৰ এই জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ এটা বিষয়েও আলোচনাৰ বাবে ঠাই নাপালে সদনৰ মজিয়াত। আলোচনা কৰা হ'ল জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰমৰ ওপৰতহে। দেশজুৰি জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ পৰা ফালৰি কাটিবলৈ আৰু অনাগত পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনৰ বাবে এয়া নতুন কৌশল অৱলম্বন নেকি শাসিত বিজেপি চৰকাৰৰ। দেশজুৰি ইণ্ডিগোৰ অব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত হোৱা হাহাকাৰ, দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণ আৰু ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ মূল্য তীব্ৰ গতিৰে নিম্নগামী হোৱা আদি এই ঘটনাই যোৱা কেইদিনমান ধৰি দেশজুৰি তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। ভাৰতৰ জনতাৰ মাজতে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে সদনৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ ৬ষ্ঠটো দিনত এই উক্ত জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ এটা বিষয়ৰ ওপৰতো সদনৰ মজিয়াত আলোচনা কৰা নহ'ল। আলোচনা কৰা হ'ল ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰমৰ ওপৰত। ৭ নৱেম্বৰত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে লিখা ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰমৰ ১৫০তম জয়ন্তী সম্পূৰ্ণ হয় আৰু এই গীতটোক লৈ কালি প্ৰায় ১০ ঘণ্টীয়া আলোচনা চলে সদনত। বিতৰ্কৰ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গীতটিৰ গৰিমা বন্দনা কৰি গীতটোক ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰাণশক্তি আৰু ঐক্যৰ আহ্বান বুলি বৰ্ণনা কৰি পিছত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত স্বাধীনতাৰ পিছত গীতটোক অৱমূল্যায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে স্বাধীনোত্তৰ কালত ভাৰতৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে মুছলিম লীগ আৰু জিন্নাৰ ওচৰত সেৱা মানি ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰম গীতটোক টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাইছিল। সদনত এই বিতৰ্কৰ মূল কেন্দ্ৰীয় বিষয়টো আছিল ১৯৩৭ চনত কংগ্ৰেছ কাৰ্য সমিতিৰ সিদ্ধান্ত, য'ত বন্দে মাতৰম গীতটোৰ কেৱল প্ৰথম দুটা স্তৱকক জাতীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। বিজেপিয়ে দাবী কৰে যে গীতটোৰ পিছৰ স্তৱকসমূহত হিন্দু দেৱ দেৱীৰ উল্লেখ থকাৰ বাবে কংগ্ৰেছে মুছলিম লীগক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পূৰ্ণ গীতটো টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাইছিল। অৱশ্যে এই অপবাদক কংগ্ৰেছে তীব্ৰভাৱে নাকচ কৰি কয় যে উক্ত সিদ্ধান্তটো মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আদি দূৰদৰ্শী নেতাসকলৰ যৌথ আলোচনাৰ ফল। ইয়াক দেশৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি অভিহিত কৰাটো ইতিহাস বিকৃত কৰা সমান। বন্দে মাতৰম কে টুকড়ে करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। মন কৰিবলগীয়া যে মোদীৰ এই বক্তব্যৰ পাছত কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত কয় যে জাতীয় সংগীতটোৰ ওপৰত এই আলোচনা সঁচাই বন্দে মাতৰম গীতটোৰ ১৫০ বছৰীয়া ঐতিহাসিক মূল্যবোধক সন্মান জনাবলৈ কৰা হৈছে নে অনাগত নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগৰ ভূমিত ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে এয়া বিজেপিৰ এক কৌশল। ইয়াৰ লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টীসহ কেইবাটাও পক্ষই অভিযোগ তোলে যে বিজেপি চৰকাৰে বন্দে মাতৰম গীতটিক সদনৰ আলোচনাৰ আঁৰত দেশজুৰি চলি থকা নিবনুৱা সমস্যা, দিল্লীৰ ভয়াৱহ বায়ু প্ৰদূষণ, লালকিল্লাৰ সন্মুখত হোৱা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, ইণ্ডিগোৰ অব্যৱস্থাপনা, ঊৰ্ধ্বমুখী মূল্যবৃদ্ধি আৰু ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ পতনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উপেক্ষা কৰিছে। আৰু লগতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপিক লক্ষ্য কৰি কয় যে আপোনালোক নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু আমি দেশৰ জনতাৰ বাবে। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें
उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। 75 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में, 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का, और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, reference Vande Mataram. We shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santi Niketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santi Niketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. Whatever we do, we cannot pander to communalists' feelings, but to meet real grievances where they exist. I have decided now to reach Calcutta on the 25th morning. This will give me time to see Dr. Tagore as well as other friends. समझ रहे हैं आप? प्रधान चुप है तो समझ ही गए होंगे। फिर क्या होता है? फिर नेहरू जी कलकत्ता जाते हैं और गुरुदेव जी से मिलते हैं, और उसके अगले दिन गुरुदेव जी एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे, उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा
कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही दो अंतरे ही गाए जाते थे और उनको गाते हुए कुर्बानी देने वाले सैकड़ों शहीदों के सम्मान के लिए उन्हें ऐसे ही गाना उचित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका इस्तेमाल अनुचित होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। आनहाते कांग्रेस सांसद गौरव गगৈ कয় যে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर जिकोनो आलोचना बा जिकोनो भाषण पूर्वर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसर उल्लेख अभिहने आधरुआ। ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। तदुपरि गौरव गगৈয়ে आरएसएसক লক্ষ্য কৰি প্ৰশ্ন কৰি কয় যে বন্দে মাতৰম গীতটোৰ মূল উদ্দেশ্যই আছিল ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা খেদি পঠোৱা। গতিকে ব্ৰিটিছক খেদিবলৈ বিজেপিৰ পূৰ্বজে কি কৰিছিল? তদুপৰি 1942 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় আন্দোলনৰ সময়ত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক পূৰ্বজ ক'ত আছিল? লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে যি বন্দে মাতৰম গীতৰ বিজেপিয়ে গুণ বখানি আছে, কিন্তু ভাৰতৰ সংগীত জনগণ মনক বিজেপিৰ পূৰ্বপুৰুষে প্ৰায় 52 বছৰ ধৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন আৰু ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক মান্যতা। बार बार वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাজনৈতিক সত্তাৰ লোভত বিজেপিয়ে কেতিয়াও পশ্চিমবংগক বুজি পোৱাৰ চেষ্টাই নকৰিলে। প্ৰত্যেকজন বঙালী ভাষা কোৱা দেখিলেই বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে। আনহাতে পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচন কাষ চপাত এতিয়া পশ্চিমবংগৰ ৰাইজৰ আৱেগ জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে।
आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, तो उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, अब असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टीर सभापति अखिलेश यादवे उक्त विवादक केन्द्र करी बीजेपीक राष्ट्रवादी নহয় बरং राष्ट्र विवादी बुलिহে आख्या दिए। मुठर ओपरत শাসিত গেৰুৱা বিজেপিয়ে বৰ্তমান দেশখনৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ পৰা ফালৰি কাটিবলৈ আৰু পশ্চিমবংগৰ অনাগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ মাটিৰে উপজা বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে লিখা জাতীয় সংগীত বন্দে মাতৰমৰ ওপৰত আলোচনাৰে পশ্চিমবংগবাসীৰ অন্তৰ জয় কৰাৰ এক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে বুলিয়ে এতিয়া বিৰোধী ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।